Is my screen visible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So in the last lecture, that was yesterday, we started a new chapter that was a intensity transformation and spatial filtering. And we have seen various methods or techniques for intensity transformation. And some of the techniques were power law, then gamma correction, means you required some gamma correction technique, bit slicing was there. So there are a few techniques that we studied. And in intensity transformation, basically you have to manipulate with each and every pixel according to a set of rules that you have defined. And you can get a desirable output. Okay, now there is another technique which is very popular for image enhancement, that is a histogram techniques or techniques based on histogram. So what do you mean by histogram? So the word is very much, so the original word histogram you must have studied or you must have come to know in class 8 or 9. So the basic meaning is same. Then you must have done something with this histogram in the study of a random process. So basically what you are going to do, you are going to plot a histogram of image. So when I say the histogram of an image, so basically what happens, uh, that on the x-axis there is a random variable, and the random variable is the pixel value. So suppose suppose r is the pixel value, pr is the random variable, and if I am dealing with a grayscale image, so this random variable is going to acquire the values between 0 to 255. So this random variable, and this is example of a discrete random variable. Okay. And on the y-axis, we'll have a number of pixels. Suppose the random variable is 120, means the pixel value is 120. So how many pixels in an image or considered image are having the value 120? So and suppose there are 100 pixels which are having the value 120. So on y-axis corresponding to 120, on the x-axis you are going to mark 100. And this is how you plot the histogram. And sometimes what may be required is you are going to consider a band of values, like histogram you are going to plot like 120 to 125 pixel values or intensity values. So that is on x-axis, and y-axis the number of pixels attending the value between 120 to 125. So you can visualize that it will be in the form of some bar chart. So that is also a histogram, but I think we don't require to uh, do that kind of operation here. Okay, so let us see what is written on the slide. So in probabilistic method, so I have introduced the random variable. Once I have introduced it, means the concept of probability will come into play. And let us see how the probability. So we can find the probability of occurrence of, suppose, a particular value, pixel value. Suppose I am targeting 120. So RK, let us see what are the different notations used here. So in probabilistic methods of image processing, intensity values are treated as random quantities. Then second point is histogram of a digital image with intensity levels is a discrete function. So again, that is clear. Then
So this is equation where RK is the kth intensity values and NK is the number of pixels in the image with the intensity RK. And then we have to find the probability of occurrence of RK. So how you can find the probability? So we have to figure out how many times RK is occurring out of total number of pixel values or total number of pixels. So total number of pixels, if we have an image of m cross n, so total number of pixels will be m into n, and out of these m into n numbers, so number of times this RK is occurring is NK. So the probability of occurrence of RK will be nothing but NK upon M multiplied by N. I think it is very clear, where K tends to 0 to L minus 1. So if you take a grayscale image, so it will tend to 255. Okay. So this is how you can define the probability of all values of random variable. Okay. And once you have defined the probabilities, you can plot a probability distribution function. Okay. Or probability distribution you can plot for each random variable, which is intensity value. Now sum of all the components of a normalized histogram. So now on the y-axis, instead of representing the numbers, we are going to represent the probability of occurrence of that particular intensity level. Okay. That is by P, a function of RK. So on the y-axis, we will be representing this probability. So then we'll have a PDF distribution, which will be a discrete PDF. That should be clear to you. And the sum of all these probabilities, if you sum up, it will be 1. It should be again very clear to you. Now, there is a clue, and the clue is high contrast image covers a wide range of intensity scale and pixels distribution is almost uniform. So this is the clue, this is the observation, that if an image is having a high contrast, so what is supposed to be there, if you just try to observe the histogram of such image, so you will find that the histogram is almost flat, it is almost uniform, and this observation will be more clearer by observing this set of images. So there is a set of images, and you just observe the corresponding histogram. The first image, यहाँ पे देखियो, this is a dark image, so almost all the pixels are having intensity values means closer to in darker side or lesser intensity values. ठीक है. So they are confined in the lower region of the intensity levels. यहाँ पे देखिए, इसको हमने कुछ बिल्कुल ब्राइट कर दिया, तो ये ब्राइट कर दिया. देखिए जितने इंटेंसिटी लेवल्स हैं, जितने भी पिक्सल्स के, वो क्या है, वो हायर इंटेंसिटी लेवल साइड में क्या है, एक्युमुलेट हो रहे हैं. ठीक है. अब ये देखिए कुछ आप ये देखिए, ये इंटेंसिटी बीच वाला देखिए, इसमें क्या है कि कुछ मिड रेंज में सारे इंटेंसिटी लेवल्स जो है एक्युमुलेट हो रहे हैं. और अगर देखो कि हिस्टोग्राम अगर फ्लैट है, तो आप देखो कि कॉन्ट्रास्ट ऑफ द फोर्थ इमेज यू कैन ऑब्जर्व इट इज मच बेटर. ठीक है. So what is written in the slide is an image with pixel values occupying the entire range of possible intensity levels tend to be distributed uniformly. So it is very clear from the image. Then an appearance of high contrast exhibit a large variety of gray tones. ठीक है. ये भी बहुत क्लियर है कि अगर कंट्रास्ट ज्यादा है, ये उल्टी बात है कि अगर कंट्रास्ट अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जो ग्रे टोन्स हैं, शेड्स हैं ग्रे के, वो लार्ज वैरायटी में है. ठीक है. सो बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. Okay. Now, so what is the motivation in histogram? So this
this is what we have studied about a histogram of an image, and what we have observed that if we have a flat histogram of an image, then there will be a good contrast, and I will say that the image is of good quality and it is enhanced image. So what happens that in histogram, so there is, so if I have an image and I want to enhance the quality of the image. So basically I can just think that I am trying to enhance the contrast, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ब्राइटनेस इनहेंस हुआ है, सेकंड जो है इसमें ब्राइटनेस इनहेंस हो गया है, तो इसमें क्या होगा कि शार्प एजेस जो आपका एक कंट्रास्ट है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, सारे पिक्सेल्स की वैल्यू आपने बढ़ा दी, ठीक है। सो एक कंट्रास्ट गुड कंट्रास्ट इमेज इज सूटेड टू योर ह्यूमन आई, और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी हमारी आई जो है वो कंट्रास्ट सेंसिटिव है, और ये जो एट्रीब्यूट है वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सो इफ आई हैव एन इमेज and if I just observe its histogram, then if I find that if its histogram is not flat, so we'll do some operation to make that histogram flat enough, ठीक है। Of course we'll have some limitations, so we have to work under some limitations, but the motivation will be to flatten the histogram, ठीक है। और जितना पॉसिबल है उतना ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उठा के एकदम फ्लैट कर दो, आपके घर का नहीं है, you'll have to apply some technique, some method, ठीक है। then means you have to take care of the sensitive information which is embedded in the image, like edge information or other information, ठीक है ना। तो अच्छा, तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के जो है, so the technique is so when you try to just flatten the histogram, so the technique is known as histogram equalization, and you may find that there are n number of histogram equalization techniques with different variations, and there are some drawbacks of each histogram equalization technique. So there are some advantages or benefits of each histogram equalization technique. So depending upon our requirement, depending upon our applications, we choose appropriate histogram equalization technique for enhancing our image, and basically it is done as a very first part of image processing operation, that is called a pre-processing. So before performing a complex or means more meaningful operations on an image, you require to enhance the quality of the image. So first thing that you have to do is image enhancement. So the techniques that you are studying in this chapter will fall in that category. So these operations or techniques will be able to enhance the quality of the image one way or the other. And this is another important, very important technique in a spatial domain. And there are a lot of variants of histogram equalization technique. So I will be just covering the basic one, but I will ensure that somebody delivers a lecture, because there are BTech students who are doing project on this, or there are some other students. So I will make sure that we have some publications on this. So I will make sure that there is a lecture, there is a presentation, separate presentation on various histogram equalization techniques. Okay, so let us see what is there in the slide. So the histogram equalization, so it is used to enhance the appearance of an image and to make certain features more visible. That's fair enough. अच्छा, ये जो जब हम बात करते हैं, जब मैंने पहले बताया था कि इमेज एनहेंसमेंट मतलब आप you will be doing applying some technique to ensure that the image, considered image, appears more proper, with improved quality, perceptual quality,
सब्जेक्टिव क्वालिटी, मतलब आप देख के आप बता सको कि भाई ये इंप्रूव हो गया, ठीक है ना। हाँ? और देर इज अ टर्म इमेज रेस्टोरेशन दैट इज डिफरेंट। वो क्या होता है, इमेज रेस्टोरेशन में क्या होता है कि इमेज has been degraded because of certain phenomena, so you have to figure out that degradation phenomena, then you have to take a countermeasure to neutralize that phenomena so that you are able to obtain the original image. Okay, अब क्या है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, an attempt to equalize the number of pixels with each particular value। तो यही बात है, इसमें क्या कोशिश करना है कि भाई जितने रैंडम वेरिएबल्स है ना सब इक्वल नंबर में रहे, वो बड़ा आइडियल है। हाँ? ये व्हाइट नॉइस टाइप का उसका बैंड बने, हिस्टोग्राम बने, ठीक है। मतलब इक्वलाइज करना है, जितने भी आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं, रैंडम वेरिएबल जैसे ग्रे स्केल इमेज में 0 to 255, ये क्या होगा, रैंडम वेरिएबल RK is going to means attain these values, ठीक है। और ये सारे वैल्यूज जो हैं उस पे आपको इक्वल नंबर ऑफ पिक्सल्स मिले, सो that will be the means attempt, that will be the क्या बोलेंगे, मतलब ये कोशिश रहेगी, ठीक है, लेकिन लिमिटेशन रहेगा, जितना कर सकते हो उतना करोगे, ठीक है। अब ये कोशिश अगर कर रहे हो तो करना क्या पड़ेगा, आप क्या कर रहे हो, इक्वलाइज करना चाहते हो नंबर ऑफ पिक्सल्स विथ ईच पर्टिकुलर वैल्यू, इंटेंसिटी वैल्यू। तो उसमें करना क्या होगा, करना ये होगा कि ये देखिए दूसरा लाइन जो है ये एक बड़ा ही मतलब एक कॉमन आपको एक आइडिया देता है कि क्या करना है। करना ये है कि एलोकेट मोर ग्रे लेवल्स वेयर देयर आर मोस्ट पिक्सल्स, ज्यादा पिक्सल्स जहां पे हैं वहां पे ज्यादा ग्रे लेवल अटेम्प्ट दे दीजिए, एलोकेट करिए, ठीक है। एलोकेट फ्यूअर लेवल, तो एक बात तो पक्का हो गया कि जितने लेवल्स हमने डिफाइन किए हैं, अगर मैं ग्रे स्केल इमेज के साथ ये काम कर रहा हूं और मैंने डिफाइन किया है 256 लेवल्स, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय 0 to 255, तो ये सारे लेवल्स मैं आउटपुट में यूज नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, इसमें से कम लेवल्स यूज करूंगा और ज्यादा लेवल्स जो है यूज करूंगा वहां जिस एरिया में, जिस रीजन में ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, और वहां पे कम लेवल यूज करूंगा जहां पे नंबर ऑफ पिक्सल्स कम है, ठीक है। तो मान लीजिए 255 अगर है, अगर हमारे पास टोटल लेवल, तो हिस्टोग्राम इक्वलाइज्ड इमेज में हो सकता है मैं 150 लेवल्स ही यूज करूं, ठीक है। लेकिन उनके जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे वो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल, या जरूरी नहीं है, लेकिन हम वो एक अटेम्प्ट दिखेगा कि हम, क्योंकि एक दूसरा लेवल जैसे 255, जैसे क्या है कि 115 लेवल बाद में डिफाइन हुए किसी कारण बस, तो मान लीजिए एक लेवल उसमें है 130, तो पता चला कि 130 वाला जो पिक्सल था, जिस वो था वो तो 130 है ही, 132 वाले को भी हमने 130 असाइन कर दिया, 133 वाले को भी असाइन कर दिया 130 ही। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वहां पे क्लबिंग करके उसके नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। और किसी, तो इस तरह से कुछ ना कुछ करना है। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। और कोई बात नहीं, ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करके देख लो और फिर देखोगे कि यही बात वहां पे आप ऑब्जर्व कर लो, ये बात आप वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या है इसमें कि आप आप क्या कर रहे हो, जैसे आरके एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। आरके क्या है, एक इंटेंसिटी लेवल जो है ऑब्टेन करता है। सपोज मैं ग्रे स्केल का एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज आरके जो है वैल्यू ऑक्यूपाई करता है 100। अब मैंने क्या किया, उसका हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन किया, ये जो फार्मूला सामने लगा हुआ है सिंपलेस्ट फार्मूला वो लगाया, और 100 इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाय सम अदर वैल्यू दैट इज एसके। तो हो सकता है एसके जो है वो 100 ही हो, या फिर 105 हो, या 90 हो। सो 100 random variable will be represented by some other random variable, some other value that is sk, ठीक है। और ये sk how it is going to be computed, ये हो गया l माइनस l, ये जो है देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं l माइनस 1 से, और l क्या हो गया, नंबर ऑफ लेवल्स, जैसे ग्रे स्केल में 256 माइनस 1 255 हो जाएगा, ठीक है।
अगर मान लो कि मैं R0 की बात कर रहा हूं तो J0 से K0 तक ही ये पहला ही एक कंसीडर होगा। मैं R1 की बात कर रहा हूं या R2 की बात कर रहा हूं तो J0 से J2 तक, ठीक है ना, K की वैल्यू 2 तक, ठीक है ना। मतलब R की K की वैल्यू 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, तीन वैल्यूज इसमें, तीन जो है इसमें, ये जो है इसमें तीन जो है 3 प्रोबेबिलिटीज वो उनका जो है एक्युमुलेशन होगा, ठीक है। सो दिस फार्मूला इज चेंज्ड इनटू दिस वन, ठीक है। ये देखिए फार्मूला कुछ इस तरह, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको हमने देखा था कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये नंबर ऑफ पिक्सेल्स के टर्म रिप्रेजेंट होता है। सो अल्टीमेटली दिस इज द फार्मूला दैट वी हैव where k takes the value from 0 to l minus 1। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, आते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन एग्जाम्पल। हाँ भाई सुन रहे हो सब लोग? वाह, यस यस सर। बढ़िया है। देखो 53 बच्चे आए हैं, चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 50 बच्चे तो हैं कम से कम सुनने वाले हैं। तो मास्टर को एकदम एहसास दिला दोगे कि यार तुम फालतू सैलरी ले रहे हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है, तुम अपना नौकरी छोड़ो कुछ और काम करो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, दिस टाइप ऑफ फीलिंग। लेकिन ऐसा भैया हम लोग भी गिव अप करने वाले नहीं है, हैं? हमें ये तो प्रूव करना है किसी न किसी तरीके से हम ठीक ठाक टीचर हैं, जब तक जिंदा है तब तक करेंगे कोशिश। अब यूट्यूब के लिए तैयार करेंगे, यूट्यूब पे ही 1000-2000 पढ़ लेंगे तो लगेगा यार ठीक है, ये तो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, लेकिन ये तो इंश्योर करना है कि भाई हम टीचर हैं, इसके लिए कोशिश करना है। आप कितना भी जो है ये हमें एहसास दिलाओ कि हम जो है यूजलेस हैं। चलिए देखते हैं। ओके, ये देखिए ये है एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, एक प्रॉब्लम है। 3 बिट इमेज, इमेज 3 बिट है तो एल की वैल्यू 8 होगा। साइज जो है इमेज का 64x64 है, 64x64 है। तो देखोगे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हो गए, इतने हो गए, ठीक है ना, 4096 हो गए। जस्ट अ मिनट, यस। तो अब देखिए कि एक आपके पास अब एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सो RK इज द रैंडम वेरिएबल, so there will be R0, R1 up to R7, and it has been assigned the value 0, 1, 2, 3। ये हो गया इंटेंसिटी लेवल्स, ठीक है। तो टोटल जो इंटेंसिटी लेवल 0 to 7, ठीक है। और ये जो 8 वैल्यूज जो है ये असाइन हो सकता है RK को। और नंबर ऑफ पिक्सल्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस तरह से है, मतलब ऐसे पिक्सल्स जिसकी वैल्यू क्या है 0 है वो कितने हैं 790। नंबर ऑफ पिक्सल्स हैविंग वैल्यू 1 इज 1023 and so on। and if you just sum up, so the total number of pixels is going to be 4096। now I can find the probability of each value of the random variable। जैसे R0 की probability क्या होगी 790 upon 4096, so it comes out to be 0.19। and similarly I can find out the probabilities of all values of the random variable, and again you sum up all the values of the random variables, so the value is going to be 1। and now I can plot the probability distribution, so I can say this this figure, the first one, this one is the PDF, ठीक है, of an image, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है, रैंडम वेरिएबल है जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है वैल्यू 0 to 7, ये इंटेंसिटी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। और y एक्सिस पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द पिक्सेल्स हैविंग ईच इंटेंसिटी लेवल और फॉर एवरी इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। और इसी का क्या करें हम, अगर पीडीएफ हो गया, दूसरा जो है, अब ये सीडीएफ नहीं है ये कुछ और है। ये देखिए एसके की वैल्यू निकल रही है, वो कैसे निकल रही है वो मैं भी आपको
एक दूसरा पेज मैं भी शेयर करता हूं, वहां से बताऊंगा कि एसके हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एसके की वैल्यू कैसे निकल रही है, फिर एसके जो है हमारा नया रैंडम वेरिएबल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इस तरह का आ रहा है। तो आप देखिएगा, ये तो देखिए, ये तो एकदम बिल्कुल फ्लैट ऐसे एकदम से देखो डिक्रीजिंग टाइप का था, और आप तो कह रहे थे कि भाई इक्वलाइज करना है, लेकिन ऐसा नहीं पूरा जो है बराबर नहीं कर दोगे, इतना ही कर पाए इस एल्गोरिथम से। ये जो आपको दिख रहा है लास्ट वाला सी दिख रहा है, इतना ही कर पाए। कैसे कर पाए वो मैं अभी एक दूसरे पेज से समझाता हूँ, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ से मैं आगे जो है, ये यहाँ पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का कैसे आया, ये भी मैं समझाता हूँ आपको दूसरे पेज को शेयर करके। कहाँ गए, जस्ट अ मिनट। यस, ये देखिए शेयर हो गया, दिख रहा है? अरे कोई बता दो। यस सर। हाँ, अब देखो S0 निकाला हमने। S0 will be this t, the function, it is a function of R0। J, L की वैल्यू 7 थी, J इक्वल टू 0 to 0, ठीक है। और एक वैल्यू जो है PR0 ही इसमें आएगा, PR0 की वैल्यू 0.19 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.33 आ गया। तो S0 की वैल्यू देखो आप यहाँ पे 1.33 आ गया। अब S1 की वैल्यू निकाला तो J इक्वल टू 0 to 1, तो यहाँ पे देखो PR0 और PR1, ये दो चीज यहाँ पे आएगा, दो प्रोबेबिलिटी। इसकी वैल्यू 3.8 आ गई, तो ये देखो S1 की वैल्यू 3.08 आ गई। इसी तरह से बाकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। S2 की वैल्यू हमको आ रही है 4.55, S3 की वैल्यू आ रही है 5.67, S4 की वैल्यू 6.23, S5 6.65, S6 6.86 और S7 की वैल्यू 7 आ रही है। अब क्या करेंगे, ये जो नया इंटेंसिटी लेवल है, ठीक है ना, ये जो है नया इंटेंसिटी लेवल हमको मिल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, इंटेंसिटी लेवल क्या है आपका, वो इंटीजर है। अब इसको हम नियरेस्ट इंटीजर्स के साथ मैप कर देंगे, और सिंपल वही काम करेंगे भाई। 0.5 से ऊपर रहेगा तो आगे बढ़ लेंगे, 0.5 से नीचे रहेगा तो नीचे बढ़ लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये देखो, ये जो है आपका 1.33 को हम मैप करेंगे 1 से, 3.08 को मैप करेंगे 3 से, 4.55 को हम मैप कर दिए 5 से, 5.67 को हमने 6 से मैप कर दिया, 6.23 को हमने 6 से मैप कर दिया, 6.65 को हमने 7 से मैप कर दिया, 6.86 को हमने 7 से मैप कर दिया, और 7 को भी हमने 7 से मैप कर दिया। अब आप देख लीजिए कि आप देखो कि जो है आपका हाँ, अब क्या हो गया आपके पास, क्या हो गया, S0, ठीक है ना, ये जो इंटेंसिटी लेवल है, ठीक है। अब आपके पास जो इंटेंसिटी लेवल आ गया वो है 1, 3, 5, 6, 7। ये आपके नए इंटेंसिटी लेवल्स हैं, बाकी हो गए गायब, ठीक है ना। अब देखो कि 1 जो इंटेंसिटी लेवल है उस पे नंबर ऑफ पिक्सल्स कौन से आ रहे हैं, जिनका पहले 0 इंटेंसिटी लेवल था, ठीक है। तो S1 अब हमारे पास है, और उस पे जो नंबर ऑफ पिक्सल्स अब आ रहे हैं वो वही हैं, कौन से, जिनकी जो है पिक्सल वैल्यू, जिनका वैल्यू क्या था, जिनका इंटेंसिटी लेवल 0 था, तो वो कितने थे, 790 थे। तो S1 जो है वो जो अटेंड करेगा, मतलब 1 इंटेंसिटी लेवल विल बी अटेंडेड बाय 790, ठीक है। 3 इंटेंसिटी लेवल विल बी अटेंडेड बाय, ये देखो पहले ये जो 1 पे जो थे, जो इंटेंसिटी लेवल 1 अटेंड कर रहे थे वो अब 3 अटेंड कर रहे हैं। तो वो देखो 1 जो अटेंड कर रहे थे वो 1023 थे, वो आ गए।
S5, अब देखो 5 जो इंटेंसिटी लेवल है वो अटेंड कर रहे हैं कौन, जो S2 पे थे। जो पहले इंटेंसिटी लेवल 2 अटेंड कर रहे थे वो 850। और 6 इंटेंसिटी लेवल, देखो पहले वाले 2 इंटेंसिटी लेवल वाले को हम क्या करेंगे, 6 इंटेंसिटी लेवल पे मैप कर रहे हैं। और वो कौन कौन थे, 3 जो अटेंड कर रहे थे इंटेंसिटी लेवल और 4 कर रहे थे। अब वो क्या कर रहे हैं, 6 अटेंड कर, 3 कर रहे थे कितने, 656, और 4 कितने कर रहे थे, 329। ठीक है, सो द टोटल इज 985। नाउ 7 पे क्या हो रहा है, जो 5 इंटेंसिटी लेवल अटेंड कर रहे थे 6 भी कर रहे थे और 7 भी कर रहे थे। ठीक है, तो जहां पे क्या था कि भाई ज्यादा अगर हो, ज्यादा अगर इंटेंसिटी, ज्यादा पिक्सल्स हो, यहाँ पे ज्यादा पिक्सल्स है क्या, चलो वो भी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने 7 जो अटेंड कर रहे हैं वो कौन से, जो पहले 5 कर रहा था, 6 कर रहा था और 7 कर रहा था, अब तीनों क्या कर रहा है, इंटेंसिटी लेवल 7 अटेंड कर रहा है। तो इंटेंसिटी लेवल 7 पे क्या हो गया, 748, 448, 6 पे क्या हो गया, 985, 5 पे 850, 3 पे 1023 और 1 पे 790। तो अब जो फाइनल हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन आया है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ इंटेंसिटी लेवल्स जो डिफाइन है वो क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये नया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसको अगर प्रोबेबिलिटी आप डेंसिटी प्लॉट करोगे तो वो कैसा दिखेगा, वो पहले दिख रहा था वैसा दिखेगा। और वो जो दिखेगा वो अभी फिर से एक बार देख लीजिए आप कैसा दिखेगा इसमें। ये देखिए, ये जो लास्ट वाला दिख रहा है पीडीएफ, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया सिंपलेस्ट हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक। इसके बाद और भी टेक्निक है। अब देखो एक हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लगा तो क्या मजा आया, ये देखिए पहले इमेज पे लगाया, ठीक है ना, पहला जो 4 इमेज था ना आपके पास, पहला पे लगाया तो देखो हिस्टोग्राम इक्वलाइज इस तरह से हुआ, थोड़ा सा तो इम्प्रूव हो ही, क्वालिटी देख लो। दूसरे पे लगाया तो देखो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इस तरह से हुआ, मतलब इक्वलाइज्ड जो हिस्टोग्राम है उस तरह का है। तीसरे पे इस तरह का है। चौथे का तो देखो पहले से ही कमाल का था, थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गया। लेकिन अब आप देखो कि जो जो हिस्टोग्राम इक्वलाइज्ड इमेजेस हैं, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, उनकी सबकी क्वालिटी लगभग सेम है। तो कम से कम आप ये कह सकते हो कि फॉर दिस पर्टिकुलर इमेज द सिंपलेस्ट हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक दैट यू हैव स्टडीड दैट राइट नाउ इज वर्किंग वेरी वेल। ठीक है ना, और ये चारों में कम से कम मेरे जैसे लोग को तो कुछ अलग दिख नहीं रहा है। इसको इनलार्ज करूं तो थोड़ा बहुत कुछ पता कर पाऊं। ठीक है ना, ऐसे हाँ, और भी कुछ करूं तो थोड़ा सा और साइज बढ़ाऊं तो कुछ हो सकता है डिफरेंस में, या आप लोग भी पकड़ पाओ। अदरवाइज क्या है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है क्वालिटी में हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको समझ में आ गया कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अगर लगाएंगे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपलेस्ट हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक लगाइए, तो क्वालिटी कुछ ना कुछ इंप्रूव होगी। ओके, इसका डिटेल्ड स्टडी जो है किया जाएगा। एक दूसरा होता है हिस्टोग्राम मैचिंग, ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा किसी दिन, हिस्टोग्राम मैचिंग। ये क्या होता है, ये जैसे आप क्या करते हो, जैसे कोई सिग्नेचर मैचिंग टाइप का है ना, तो मान लीजिए अगर, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम है कि ऐसा हो सकता है कि 2 इमेज है, दोनों का हिस्टोग्राम जो है एक ही जैसा है, बिल्कुल अलग अलग इमेज है। हिस्टोग्राम इक्वलाइज, हिस्टोग्राम जो है उसका दोनों का एक ही जैसा है। ठीक है ना, तो आप, ऐसा नहीं है कि एक हिस्टोग्राम मिल गया तो उससे आप जो है मतलब आप ये बता सकते हो कि ये कौन सा इमेज होगा, ये आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि अलग अलग इमेजेस के सेम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हो सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और बताएंगे। ठीक है, लेकिन स्लाइड में लिखा हुआ है और एग्जाम में आ गया तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरे भरोसे मत रहिएगा। ठीक है ना, हिस्टोग्राम मैचिंग जो है आप तत्काल खुद पढ़िएगा। ठीक है भाई, क्लास करने वाले कुछ तो फायदा होना चाहिए। हाँ, चलो।
मेरी बातों को जो है बहुत ध्यान से सुनिए, जो अगर आप सुन रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि ये तो हमें इंश्योर करना है कि जो क्लास कर रहा है उसको कुछ फायदा मिले, ठीक है, क्योंकि बाकी और हम कितना एक्सरसाइज करेंगे, हैं? तो कम से कम ध्यान से आप बात सुन रहे हो तो हमारी हर एक बात को बहुत ही ध्यान से नोट करिएगा, आपको कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। ओके, अब क्या है, ये तो हो गया स्पेशियल डोमेन में जो एक टेक्निक इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का था, ये हो गया। अब दूसरा जो टेक्निक है वो क्या है, वो है स्पेशियल फिल्टरिंग। स्पेशियल डोमेन में हम फिल्टरिंग करेंगे। तो फिल्टरिंग में क्या करते हैं, जिस भी हर एक पिक्सल, तो सिंपल सा बात है, तो फिल्टर आप बहुत पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या है कि फिल्टर के बारे में यू आर नॉट एबल टू, और वी आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली इमेजिन और विजुलाइज अ फिल्टर, ठीक है। और अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग सिनेरियो में फिल्टर का विजुलाइजेशन भी अलग अलग होगा। और यहाँ पे आप क्या विजुलाइज कर सकते हो फिल्टर के बारे में, वो ये कर सकते हो कि भाई एक फिल्टर जो है, यहाँ पे पहले तो फिल्टर है क्या, तो एक मास्क है, एक मास्क या एक टेम्पलेट है, या फिर एक आपके पास जो है छोटा सा जो है एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और उस मैट्रिक्स में जो है आप कुछ न कुछ वैल्यू डालोगे अपनी होशियारी के हिसाब से, ठीक है। और उस मैट्रिक्स को लेके आप क्या करोगे, आपके पास एक इमेज जो है वो भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो आप जो है फिल्टर वाले मैट्रिक्स और इमेज वाले मैट्रिक्स के बीच में कोई ऑपरेशन करोगे, ठीक है ना। और सबसे पॉपुलर ऑपरेशन वही होता है कन्वोल्यूशन वाला, ठीक है ना। क्यों होता है वो देखेंगे, और वो समझने की जरूरत नहीं अभी, लेकिन हमें ये पता है कि हमें करना क्या है। हमें करना ये है कि हमारे पास जो इमेज है उसके हर एक पिक्सल वैल्यू को हमें कुछ न कुछ मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू, means the values which are there, or the pixels means modification will be done according to the neighboring pixels, ठीक है ना, and the values attained by neighboring pixels। उसके पिक्सल्स, एक जो भी पिक्सल अंडर कंसीडरेशन है, उसके आसपास जो पिक्सल है उसकी जो वैल्यूज हैं उसके हिसाब से क्या करना है कि मॉडिफाई करना है। और वो हिसाब क्या होगा, वो रूल क्या होगा, वो आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना। कैसे करोगे अभी देखोगे। तो कुल मिलाकर बात जो फिलॉसफी यही है कि हमको हर एक पिक्सल की वैल्यू मॉडिफाई करनी है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ द नेबरिंग पिक्सल, ठीक है ना, बेस्ड ऑन सम रूल और सम फिल्टर। और फिल्टर क्या होगा, एक ग्रिड होगा मैट्रिक्स का जिसमें कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है। ओके, सो द फिल्टर कंसिस्ट ऑफ नेबरहुड, टिपिकली ए स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है ना। प्री डिफाइंड ऑपरेशन होता है ऑल्सो कॉल्ड, एक जो ये आपका रेक्टेंगल आप ले रहे हो फिल्टर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेशियल मास्क और कर्नेल्स और टेम्पलेट्स और विंडोज, ठीक है। अब फिल्टरिंग में क्या क्या करते हैं हम, ये देखिए, एक्सेप्टिंग और पासिंग और रिजेक्टिंग सर्टेन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ठीक है ना। अब जैसे लो पास फिल्टर में क्या होगा, लो पास फिल्टर में हम लो फ्रीक्वेंसी को हम पास करेंगे। अब ये लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये मैंने एक बार दो बार समझाया था, आगे हम और समझेंगे। स्पेशियल वेरिएशन जहां पे बहुत स्लो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे स्पेशियल वेरिएशन फास्ट होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज अ variation in the intensity level with respect to space, that is how this frequency is defined, ठीक है। Okay, so what the filtering will do, it will create a new pixel with coordinates equal to the coordinates of the center of the neighborhood, and whose value is the result of the filtering operation। समझ में अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं। So always use a odd size filters, जैसे 3x3 हो गया, 5x5 हो गया। ये ऑड फिल्टर इसलिए यूज करते हैं, अभी बस आगे की लाइन में बता देंगे। और अगर क्या है कि इफ द ऑपरेशन आपको पता है कि, चलो
ये देखो, ये देख ही लो भैया पहले। ये देखो क्या है कि एक इमेज है, मान लीजिए वो इस तरह से एक ग्रिड में रिप्रेजेंट होगा, एक फिल्टर मास्क जो है इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अब फिल्टर मास्क को क्या करना है, इमेज पे स्लाइड करना है और कुछ ना कुछ, और फिल्टर मास्क में क्या है कि हर एक ग्रिड की अपनी कुछ वैल्यू है, और जो इमेज है उसमें भी जो भी ग्रिड्स है उसमें सबकी अपनी एक वैल्यू है। अब क्या करना है कि इसको एक साइड से जो है, ऊपर टॉप से जो है, ये फिल्टर मास्क को लेना है और इसको एक एक ग्रिड स्लाइड करते जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है। और ये जो ग्रिड है, इसके नीचे जो पिक्सल्स हैं, ये पिक्सल और इसके नीचे वाले पिक्सल्स के बीच में कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है। और स्लाइड करते हुए कहां से, लेफ्ट से राइट जाना है, फिर टॉप से बॉटम की तरफ जाना है। और इसी तरह से जैसे अब ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब जो भी ऑपरेशन होगा आपको एक वैल्यू मिलेगा इससे, और वो जो होगा वो दैट विल डिसाइड द मॉडिफाइड पिक्सल वैल्यू ऑफ दिस सेंट्रल पिक्सल व्हिच इज लाइंग बीनीथ दिस मास्क। समझे? तो ये जो ऑपरेशन जो भी होगा उससे हमको एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ द सेंट्रल पिक्सल व्हिच इज लाइंग बिलो, ठीक है ना। तो अब अगर ये देख लिए तो अब अगर इसको समझो तो समझ जाओगे। तो एक बात समझ में आ गया कि भैया ये जो है, ये जो फिल्टर जो है इसका साइज ऑड ही रखना है, ठीक है ना, ताकि उसके दोनों साइड ऊपर नीचे जो है बराबर नंबर, ये सेंटर बना रहे, ठीक है, ताकि एक सेंटर में रहे। 4x4 लोगे तो उसका सेंटर क्या होगा, है तो ये सेंटर पिक्सल है, उसके आगे पीछे आगे आजू बाजू सब जो है ऊपर नीचे, मतलब ये सिमेट्री एक रहे और ये सेंट्रल पिक्सल रहे, ठीक है। इसलिए अब जाइए पिछले स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। सो क्रिएट अ, हाँ ठीक है, यूज ऑड साइज फिल्टर्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट इज 3x3, इससे नीचे कुछ कर नहीं सकते। और आगे क्या है, इफ द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द इमेज पिक्सल्स इज लीनियर, then the filter is called a linear spatial filter, otherwise filter is a non-linear। ये भी बात सही है। अब आते हैं, देखते हैं ऑपरेशन कौन सा करेंगे। तो देखिए दो तरह का ऑपरेशन जो है स्पेशियल फिल्टरिंग में करते हैं बेसिकली। एक होता है कोरिलेशन, दूसरा होता है कन्वोल्यूशन। टर्म जो है दोनों आपने बात पहले भी सुना है। तो कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन कैसे करते हैं? कोरिलेशन क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फिल्टर यूज्ड फॉर मैचिंग बिटवीन। अगर दो दो इमेज लेंगे और उसके बीच में अगर कोरिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ मैचिंग जो है आपको एक मिलता है कि दोनों में सिमिलरिटी कितनी है। दो सिग्नल के बीच में भी कोरिलेशन निकालते हैं, ठीक है, दो डेटा सेट के बीच में भी कोरिलेशन निकालते हैं, सबके तरीके हैं, ठीक है ना। ओके, उसी तरह से कन्वोल्यूशन क्या है, उसमें क्या है, जो भी फिल्टर है उसको 180 डिग्री रोटेट करना है। और इस सब ऑपरेशन के लिए, दोनों ऑपरेशन के लिए एक काम करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, पैडिंग एंड इमेज। ये देखो इमेज होना चाहिए था विथ विथ क्या, with m-1 rows of zeros at the top and bottom and n-1 columns of zeros at m cross n इमेज है आपका, ठीक है ना, m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो क्या करना है, नहीं सॉरी, इमेज का साइज नहीं है, फिल्टर का साइज है। तो साइज फिल्टर का अगर m क्रॉस n है, इसका मतलब क्या है कि m-1 नंबर ऑफ रोज जो है, जो भी आपके पास मैट्रिक्स का उसके ऊपर उतने जीरो पैड कर दो, उतने नीचे उतने रोज जीरो का पैड कर दो, और n-1 कॉलम ऑफ जीरोस राइट में पैड कर दो, और उतना ही लेफ्ट में पैड कर दो। उसके बाद जो भी रिजल्ट आए उसको क्रॉप कर लो, कैसा, जो भी एक इमेज का ओरिजिनल साइज था उसके हिसाब से क्रॉप कर लो। और समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एग्जांपल देख लीजिए। अब ये देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल है, एक ओरिजिनल और एक क्या है आपका fx इमेज है जिसमें एक ही वैल्यू है 1, ठीक है ना। एक wxy जो है, एक ये हमारा जो है इमेज फिल्टर हो गया ये, ठीक है, जिसकी ये वैल्यूज है, ठीक है ना। और ये वैल्यूज है, तो सबसे पहले इसका पैडिंग कर दो, क्योंकि अभी आप देखो इसको अगर, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ये जो 5 वाला है ना, ये हमारा ये जीरो है, ये भी सेंटर में आना चाहिए, ठीक है ना, तभी इसका वैल्यू जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे वैल्यू से।
और यही काम करने के लिए ये जीरो जो कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाले जो ये सारे वैल्यूज हैं, ये भी सेंटर में आ जाए, इसी के लिए वो पैडिंग किया गया है। तो देखो इसमें पहले तो 2 रो जो है ऊपर, देखो 1 के ऊपर 2 रो है, तो 2 और हमने पैड कर दिया, और 1 के इधर भी 2 रो है। तो हमको क्या है, n क्रॉस n है ना, 3 क्रॉस 3 है, तो 2 रो हमको ऊपर पैड करना है, 2 रो हमको नीचे पे पैड करना है जीरो का, 2 लेफ्ट में करना है, 2 राइट में करना है। तो पैडेड फंक्शन ये हमारा हो गया इमेज। दिस इज माय पैडेड इमेज, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब आप कोने पे ले आओ इसको, अब यहां से ऑपरेशन शुरू करो। यहां से ऑपरेशन शुरू करोगे तो यहाँ वाला पिक्सल जो है इसकी वैल्यू चेंज होना शुरू होगी, ठीक है। फिर अगला पे जाओगे तो यहाँ पे इसके नीचे जो वैल्यू है वो चेंज होगी, ठीक है। ऑपरेशन करो, कोरस्पॉन्डिंग जो है सिंपल जो है वो मल्टीप्लीकेशन करके समेशन करना था, कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है उसका मल्टीप्लीकेशन करके समेशन करना था, ठीक है। तो ये करते हुए जब बढ़ोगे यहाँ पे, तो आपको देखोगे ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू कहाँ कब मिलेगी आपको, जब ये सेंटर में, ये जो है ये कब मिलेगी, जब ये ब्लॉक जो है ऑपरेशन होते होते कहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे आएगा, ये देखो, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर आएगा नहीं, ठीक है, इसके ऊपर आएगा, तब क्या होगा, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा। जब ब्लॉक ये कहाँ पे आएगा, 2 3 ये देखो, ये ब्लॉक जब टहलते घूमते यहाँ पे आएगा, टहलते ऊपर से शिफ्ट होते हुए पहले पहला रो होगा, ये जब ब्लॉक यहाँ पे आएगा ना, तब पहला हमको मिलेगा। ये देखो ब्लॉक, ये मैं ये इससे जो सेट बना रहा हूँ दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो ये ब्लॉक जो देखो जब घूमता हुआ यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे जब आएगा तब देखो क्या होगा कि 9 और 1, 9 into 1 जो है वो यहाँ पे जो समेशन हो गए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के, तो वहां पे 9 मिलेगा, और which will be written, which will be the value of the central pixel। वो सेंट्रल पिक्सल ये होगा, ठीक है ना। सेंट्रल पिक्सल जो होगा वो ये होगा, ये सेंट्रल पिक्सल होगा वो। वही सेंट्रल पिक्सल देखो 3 रो छोड़ के, 3 कॉलम छोड़ के ये है 9 जहां पे लिखा हुआ है। सो इट विल चेंज द वैल्यू। जब ये ब्लॉक ऊपर वाला मूव करते हुए यहाँ पे आज मैंने सेट बनाया है, तो ये जो सेंट्रल पिक्सल है उसकी वैल्यू 9 होगी, क्योंकि सारे समेशन का वैल्यू 9 आएगा, और सेंट्रल पिक्सल वही सेंट्रल पिक्सल यहाँ पे रिप्रेजेंट, ठीक है। सो दिस सेंट्रल, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 9। तो इसी तरह से आप मूव करोगे तो आपको एक मिल गया, ये फुल्ली कोरिलेशन वाला रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करो, सेंटर से ही आप जो साइज आपका था उस साइज को लेके आप इसको क्रॉप कर लो। ये आपको जो है क्रॉप्ड कोरिलेशन रिजल्ट मिल गया इस इमेज का, समझ गए। पहले देख लें कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, और कन्वोल्यूशन भी क्या है, बहुत आसान है, वो भी कैसे निकालते हैं। एक कोरिलेशन हो गया, कन्वोल्यूशन कहाँ गया, हाँ ये कन्वोल्यूशन हो गया। कन्वोल्यूशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये जो है ना, ये जो आपका है, ये इसमें क्या करना है, देखो इसमें 180 डिग्री आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। ये जैसे यहाँ पे ये आपका है ना कर्नल या मास्क, इसमें क्या करना है, इसको आपको 180 डिग्री शिफ्ट करना है, यही बोल रहा है ना, रोटेट फिल्टर बाय 180 डिग्री। रोटेट फिल्टर 180 डिग्री, देखो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, अब मैं क्या करता हूँ, आप समझो कि ये एक आपके पास एक, ये कहीं आपने लिखा हुआ है कागज के टुकड़े पे, इसको 2 बार जो है पलट, मतलब इसको जो है एक पलट 90, एक पलटी मारोगे तो 90 डिग्री, दूसरा पलटी मारो, ठीक है ना। प्लेन में, एक प्लेन में, इसी प्लेन में इसको 2 पलटी मारो किसी साइड में,
राइट लेफ्ट किसी साइड में पलटी मारोगे, पता नहीं ऊपर नीचे भी मारेंगे तब भी आ जाएगा क्या? तो राइट लेफ्ट 2 पलटी मारोगे तो ये देखो, ये वो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ये जो 9 यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ से ऐसे पलटो इसको, नहीं कैसे दिखाएं उसको, ये स्मार्ट बोर्ड का, ठीक है। इसी प्लेन में उसको राइट लेफ्ट में 2 बार अगर आप पलट दोगे तो ये देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना, ये ऐसे दिखेगा। ये फिल्टर था, ये आपको ऐसे दिखेगा। अब देखो जरा कल्पना कर लो, इमेजिन कर लो, 2 पलटी मारो राइट लेफ्ट किधर भी, आपको ये फिल्टर मिलेगा। फिल्टर जो है 180 डिग्री शिफ्टेड वर्जन मिल गया ये। फिर वही ऑपरेशन जो किया था वही ऑपरेशन कर डालो, फिर से क्रॉप कर डालो, ये आपको कन्वोल्यूशन, ये कन्वोल्यूशन का आउटपुट मिल गया, ठीक है ना। So the image convolve with the filter and you are getting this result. This is a convolved result. So this is how the convolution and correlation operation is performed on an image using some filter or mask or window. ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए, ये भी आप एग्जाम में जरूर कुछ न कुछ इस पे मिलेगा, ठीक है। So that's all for today. अब क्या है कि ढेर सारे स्पेशल फिल्टर्स हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, सो सर्टेन दैट आई विल कवर दिस वीक ओनली, ठीक है ना। तो आई विल मे बी आई विल शेड्यूल सम क्लास ऑन सैटरडे और मे बी इवनिंग, यू गिव मी सुटेबल टाइम, ठीक है ना। या फिर कल क्लास है तो बताओ भाई, कल क्लास ले लें किसी समय। कल देखो सेकेंड हाफ में कहीं है क्या, किस बता देना भाई, CR, ठीक है। अरे कोई तो हाँ ना कुछ बोल दो भैया, तुम तो एकदम से यस सर, यस। बेइज्जती करने पे लगे हुए हो तुम लोग, हैं। पता चला एक आध टीचर इस तरह सुसाइड कर लेगा, कहेगा स्टूडेंट जो इग्नोर कर रहे हैं। वो कुछ ख्याल रख लो यार। जस्ट अ मिनट। Okay, so I have taken the attendance. Thank you very much for attending the class.